सर अभी जो थर्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड वैल्यूएशन का जो प्रोग्राम रखा गया है सर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? It is the furtherance of what we have been doing over years. 2023, we did this program resolve in Singapore. 24 in New Delhi, Bharat Mandal. And 25 we are doing in the financial capital of the country, Mumbai. Relevance is pretty clear. We want to perform, we want to showcase to the world that we are the professionals who undertake diverse tasks and give our best. Sir, so this is the only third conference or people will see like more ahead of it? This is the flagship conference for third year. अगले साल Okay. per year we do one flagship. But it's a legacy will be continued. We do so many workshops, so many conferences lined up. Sir, what you are about to say, sir? Arpit sir. Chairman is Gyanji Mishra of Insolvency Bankruptcy Code. अभी आप मुझे फ्री करें, फिर ये सब आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना? सर जो 51,000 करोड़ का जो अभी पूरा संदेश केस में जो सेटलमेंट हुआ था उस पर सर व्हाट इज योर I will not like to speak on any individual issues. आप इससे कैसे पूछ सकते हैं? मैं रेगुलेटर हूँ. आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछिए. सर सिंगापुर में जो आप इससे पूछिए, then you, when I finish you can ask the showcase to the world that Indian professionals, we are the largest accounting body of the world. Started way back on 1st July 1949. Ever since then, we have been performing to make India an economic superpower. IBC is a reform process. That process has to be brought to the forefront, exhibiting to people our skills. People who do insolvency, when the chairman does insolvency and bankruptcy, they are very much specialized professionals who deliver things on the right esteem and ensure that we move in the right direction. What message you are going to give to chartered accountants, young chartered accountants जो अभी अपने futures देख रहे हैं? A twofold message. Number one, hone your technical skills and create an impetus that you are the best. And second, work wholeheartedly for your motherland India. We have to ensure to make India a super economic power, and our institute, the Institute of Chartered Accountants of India, best institute of the world. अब आप लीजिए. Proposition was seen with World Congress in 2022. In 2023, we did an international conference in Gandhi, Gujarat. In 2024, in the forensic standards and IBC go hand in glove. We promulgated 23 forensic standards which are the first in the world. So with forensic standards we are able to determine where the money is being siphoned off. So IBC or insolvency occurs when money goes out of the system to unauthorized hands, when it is not used for the desired object for which it has been brought in the company. So forensic standards and forensic investigations give you a conclusion where the money has been siphoned off. So it is an integral part of IBC. Okay. Thank you. अभी इंसॉल्वेंसी का नया बिल आ रहा है. पार्लियामेंट में वो बिल सिलेक्ट कमेटी में है. सिलेक्ट कमेटी को हमारे अपना रिकमेंडेशन दिया है कि उसमें क्या क्या सुधार किए जाए. उनमें मुख्य 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा. पहला है इंसॉल्वेंसी का जो टाइमलाइन है वो रेगुलेट करने की बात है. दूसरा है कि जो जब केस NCLT में
कोई भी इंसॉल्वेंसी का आता है तो उसको एडमिट करना ना एडमिट करना वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। अब नए बिल में क्या है कि वो इंसॉल्वेंसी कोई केस पड़ेगा तो कंपलसरी एडमिट किया जाए। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा है वो क्रेडिटर लेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आ रही है, CIIRP। तो वो एक नया डेवलपमेंट, एक बड़ा डेवलपमेंट होगा कि जो छोटे केसेस होंगे वो उनमें गवर्नमेंट निकालने की कोशिश करेगी। एक क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, ग्रुप इंसॉल्वेंसी, एक कंपनी है उसकी कई कंपनियां हैं तो एक कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है तो क्या दूसरी कंपनी भी जा सकती है? उसके लिए भी नए रूल्स फॉर्म हो रहे हैं। ऐसे मान कोई कंपनी इंडिया की है, उसकी कोई ब्रांच बाहर है आउट ऑफ इंडिया, या उसकी कोई एसोसिएट कोई कंपनी बाहर है तो ये कंपनी का इंसॉल्वेंसी में जा रही है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है? इसको भी ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का भी नया इनेक्टमेंट में नए प्रावधान आने जा रहे हैं। इससे पब्लिक सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना फ़ायदा होगा इस जो भी नया बिल? देखिए, इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क का पूरे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत बड़ा फायदा है। एक्चुअली कोई इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी में कोई कंपनी अगर फाइनेंशियल मैटर्स में वो वीक हो गई, अपने डेट्स डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है, अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई दूसरी कंपनी आती है या उसको रिस्ट्रक्चर करा जाता है कि आप कर लो खुद ही इस तरीके से। तो इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इज लाइक, ऐसे कह लो आप, कोई आदमी अगर बीमार हो गया तो उसका रिपेयर होना जरूरी है। लाइक वाइज इंसॉल्वेंसी है कि उसको रिपेयर मेंटेनेंस करके दोबारा खड़ा किया जाता है कि आप दोबारा काम करो, और उसको करने वाला दूसरा, कोई जरूरी नहीं वो खुद ही करे, दूसरा आदमी भी आता कहता है कि नहीं आप नहीं चला पा रहे हो, कोई बात नहीं हम चलाएंगे। ये होता है इंसॉल्वेंसी। IBC का जो सक्सेस रेशियो क्या है? सक्सेस रेशियो IBC का सक्सेस रेशियो क्या है? देखिए, सक्सेस रेशियो तो नंबर टर्म्स में अगर देखें तो अभी तक 4 लाख करोड़ का हमारा इंसॉल्वेंसी के प्लान से हमारे कंट्री में पास हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एग्जिट प्लान मिलता है, कंपनियां जो काम नहीं कर पा रही हैं, MSMEs हैं, तो उनको एग्जिट करने का रास्ता मिलता है। तो अभी एज ऑन डेट अगर हम देखें तो जो आने वाला समय है वो इंसॉल्वेंसी रिजीम के लिए बहुत अच्छा समय आने जा रहा है, प्रोफेशनल्स के लिए भी, कंपनीज के लिए भी, कि वो अगर कोई आदमी इसके कंपनी का प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा कि उसको एग्जिट कर सकता है। सिंगापुर में इतना बड़ा जो इवेंट हुआ था कितना सक्सेसफुल था सर? क्या रिस्पॉन्स था? सिंगापुर में हमारी एक कमेटी इंस्टीट्यूट की है, कमेटी ऑन MSME एंड स्टार्टअप, उसका अभी 27 जून को हमने मुंबई में बहुत बड़ा इवेंट किया था चेयरमैन साहब के नेतृत्व में, और उसका अभी स्टार्टअप का एक हम लोगों ने सिंगापुर में इवेंट किया। उसमें क्या था कि हमने 8 स्टार्टअप पूरे इंडिया से हमने शॉर्टलिस्ट किया, उनको हम सिंगापुर लेके गए। सिंगापुर में हमारा इसी ग्रुप का चैप्टर है, जैसे ये ऑफिस है हमारा मुंबई का, ऐसे सिंगापुर में भी हम लोगों का चैप्टर है। तो उस चैप्टर ने वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया और वहाँ से जो हम 8 स्टार्टअप यहाँ से इंडिया से हमने इनवाइट किए थे, उसमें 3 स्टार्टअप को हमने फंडिंग करवाया, उनको पैसा दिलवाया वहाँ से, और कई इंटरनेशनल फंड करने वाले लोग हम लोगों के अब टच में, हम ये स्टार्टअप के फंडिंग को हम लोग और बूस्ट देंगे। इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आने वाले टाइम में करेंगे, वहाँ से स्टार्टअप को इकट्ठा करेंगे और जो अच्छे स्टार्टअप हैं उनको ले जाकर के सिंगापुर में फंडिंग करवाएंगे। हमारे साथ में अर्पित काबरा जी वाइस चेयरमैन भी सिंगापुर में थे, और अर्पित जी ने पूरे इकोसिस्टम में स्टार्टअप में अपना पूरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जो हमारे इन्वेस्टर्स वहाँ आए हुए थे उनसे हम लोगों ने पर्सनल मीटिंग करके उनको इनवाइट करा कि आप इंडिया आएँ और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के पार्ट में। हम लोग को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम लोग ने जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर से वहाँ मीटिंग किया, उनका कहना था कि अब वो एक्चुअली भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत के लोकल लेवल में, टायर 2 टायर 3 नहीं, और उससे नीचे जाके जहाँ पर एक्चुअल स्टार्टअप्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो उधर पैसा लगाना चाहते हैं ताकि बढ़ते हुए जो इंडियन इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सके वो अपने लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए और पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क ICAI ने पहली बार इतिहास में पहली बार सेटअप किया, जहाँ पर MSME कम्युनिटी बाहर जाके स्टार्टअप्स के लिए फंड रेज करके आई है, और ऐसे कम से कम नहीं करके 25 से 30 इन्वेस्टर्स हैं जो लाइन अप हैं, जो चाहते हैं कि अब इंडिया में आके भारत में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो वैसे ही हम, जैसे ही इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है,
हमारी भारत भर में 180 ब्रांच है और हर ब्रांच में हम MSME क्लिनिक चलाते हैं। हफ्ते में एक दिन फ्राइडे, अगर कोई भी MSME हमारे ब्रांच में आता है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो सब्सिडी की हो, GST के बारे में कुछ हो, इनकम टैक्स के बारे में हो, तो उसकी हमारी MSME कमेटी जो सर के अंडर में चल रही है, स्टार्टअप MSME कमेटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन के ऊपर हैं, तो हम ये जो एक मुहिम चला रहे हैं, एक इन ट्रू सेंस ICI इज बिकमिंग पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, उसकी जो एक्सरसाइज है, हमारी 180 ब्रांचेस जो अक्रॉस इंडिया है, वहाँ फ्री क्लिनिक चला के हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई में बैंगलोर में WRG चेयरमैन केतन सही है, उनके नेतृत्व में हम लोग BKC में फ्री क्लिनिक चला रहे हैं एवरी फ्राइडे। तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कोई भी उद्योग कर्मी जो भी किसी भी छोटा मोटा बड़ा, अगर उसको कोई भी तकलीफ है, उसको कहीं भी हेल्प चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो आए और उस दिन फ्राइडे को BKC में फ्री ऑफ कॉस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह ले सकता है। और CA के साथ साथ वहाँ पर सिडबी, वहाँ पर सारे बैंक्स, वहाँ पर दूसरे और सब्सिडी स्टेक होल्डर्स सब आपको वहाँ मौजूद मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में एडवाइस भी मिलेगी। सर, जहाँ तक अभी आपने जो कहा कि आपने सिंगापुर इंटरनेशनली भी आपने कौन से फर्म्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने का, स्टार्टअप्स में सिंगापुर की बात करें या सिंगापुर में? देखिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी एक चीज़ से बनी नहीं है। एक टाइम था जब IT पर लोग ज़्यादा काम कर रहे थे। अभी तो हम लोगों ने वहाँ पर एग्री बेस स्टार्टअप को भी फंडिंग के बाद एग्री बेस जो स्टार्टअप होता है, तो एक एग्री बेस स्टार्टअप पे वहाँ फंडिंग के लिए लोग तैयार हुए। एक फंडिंग हम लोगों ने करवाया जिसमें जो ये एयर है ना, एयर से पानी बनेगा। ओके। हाँ, ये हवा लेंगे, हवा से पानी बनाएंगे। हवा में नमी है ना, तो नमी किस वजह से? पानी से। तो अब पानी जो हम पानी पी रहे हैं, उससे बहुत अच्छा पानी, हवा वाला पानी, उस पर हमने फंडिंग करवाया। तो क्या टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, देयर टू पार्ट्स। इनोवेशन पे भी लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि टेक्नोलॉजी तभी होगा, इनोवेशन कोई नई चीज़ सोच रहा है उस पर भी फंडिंग हो रही है। MSME जो कंपनीज है, इनको बाहर के जो इन्वेस्टर्स जो देख रहे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ज़्यादा सही लग रहा है या कैसा है, मतलब रिस्पॉन्स कैसा है, किस तरह है? इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी अच्छी है, हर आदमी इंडिया आना चाहता है। तो MSME स्टार्टअप अगर इंडियन है तो वो पूरे विश्व में अपने आप को उसको अच्छा दर्जा दे रहे हैं। थैंक यू। हाँ, रोल ओके। सर, जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ICMA से द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या कहना चाहते हो सर? ये जो इंस्टीट्यूट की IBSB जो कमेटी है, बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड बोर्ड, इसने प्रोग्राम किया है। रिजॉल्व 23 से स्टार्ट हुआ था। पहला प्रोग्राम हमने जो है सिंगापुर में किया था, दूसरा प्रोग्राम दिल्ली में था हमारा, भारत मंडपम में। जब लास्ट ईयर मैं भी वाइस चेयरमैन था इस कमेटी का, और इस बार मैं कमेटी का मेंबर हूँ। इससे पहले मैं वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। आई थिंक ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसके थ्रू हम इंटरनेशनल प्रेजेंस रख रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ला रहे हैं, ताकि रिजोल्यूशन जो है इंसॉल्वेंसी के, वो रिजोल्यूशन बराबर सही तरीके से हो सके। हम रिजोल्यूशंस के लिए या रिकमेंडेशंस के लिए क्या क्या नई गाइडलाइंस हैं, IBPI क्या कर रही है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी न्यूएंसेस, नई चीज़ें जितनी भी है वो यहाँ डिस्कस की जाती है, उससे गाइडेंस मिलती है। आई एम श्योर दैट जो यहाँ आज जिन्होंने भी ज्वाइन किया है ये प्रोग्राम, वो सभी को इसका बेनिफिट होगा। और सर, जो अभी सिंगापुर में हुआ था, तो जो वहाँ के इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी IMA से जो कंपनीज है स्मॉल स्केल, उसमें भी इन्वेस्ट करने का बात कही है। तो अभी दो चीज़ें हुई थी। पहले जब हमने सिंगापुर में ये रिजॉल्व किया था, उस समय रिजोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हुई थी। और अभी MSME का एक प्रोग्राम है, इंडियन स्टार्टअप्स को 10 इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने फंडिंग करने का प्रॉमिस दिया, वो फंडिंग कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमारा जो मोटो है ये है कि इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं, इंडियन जो कंपनीज हैं, जो रिजोल्यूशन में भी है और जो पर्सपेक्टिव है, उनके अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए और भारत जो है 2047 के अंदर विश्व की तृतीय शक्ति बनने वाला है, तीसरी शक्ति बनने वाला है। ऐसे समय में हर आदमी पूरे विश्व में भारत की ओर देख रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट
जो है इसके लिए अपनी तरफ से पूरा काम करना है। हम सारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर मिलकर इसके लिए काम करें। इंटरनेशनली हम लोग अच्छा काम करें, इंटरनेशनल फंड्स यहाँ आए और इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू। Myself, A. Vishnu Agarwal, Chartered Accountant, Central Council member of the Institute of the Chartered Accountant of India. Today, the Institute of the Chartered Accountant of India has organized this beautiful conference for the insolvency professional. When 16 this insolvency professional came from that today, till date, we Chartered Accountants have done a lot of efforts for success of this initiative of the government of the India, and we Chartered Accountants as insolvency professional done and given the success ratio to the government of the India and work day and night hard working and came out with the good results and with all the companies which were in the downfall, we have given the regulation and came out with the financial creditors and the creditors who were not recovering their money from that particular company. As a Chartered Accountant of India, as a this we have done so many initiatives as a from the Institute of the Chartered Accountant. Thank you, friends. About this whole event. Right. My name is Ram Mohan Bhave. I am of course a chartered accountant and cost accountant and company secretary. I am also president of Association of Valuation Professionals. And the knowledge sharing which is happening here is something great. I think IBBI, ICAI and the various organizations which are holding this are really adding a lot to the profession's value. Being a past chairperson and independent director on LIC Mutual Fund Trustee Company, I have an honor to be here, and the knowledge sharing which is happening here is quite amazing. I am sure Mumbai like financial capital will bring lot of inputs arising out of this, contribute to this our nation. Thank you. Start. My name is Ganesh Parekh. I am from the President. This is third international convention on insolvency and valuation. It really creates a very good impact on the understanding about insolvency regime, what is happening in India and how it is helping to resolve the many cases across the India for right from big corporate to a small corporate sector, and it is really helping economy in a big way that it will be substantial again reimposing and restarting the industry in India. This is what I could understand about this, and this really helping us. Thank you very much. Thank you. Yeah, I'm Sunit Shah, Chartered Accountant and insolvency professional. So I've been attending this resolve which is hosted by Institute of Chartered Accountants of India, and this is the third year of resolve that is happening. First is it happened in Singapore, second it happened in New Delhi, and this time it's happening in Mumbai, the financial capital of this country. And every time I have been to this conference, and it was a great conference every time. And year to year it's getting more and more improvisation is happening in these insolvency domain and these conferences as well. So this time the beauty of this conference this time is that it has more than 50 speakers, and it is more about smaller topics they have covered, which is encompassing half an hour to 45 minutes, which is they have tried to capture so many subjects in 2 days conference, which is a great thing. Great event or great conference, international conference that is being organized by Institute of Chartered Accountants of India and hosted by WEC Mumbai. So we are thankful to everyone for this lovely conference. Myself CA Dipti Jain. I am working as a Vice President in the Choice Group in Financials, which is into financial services. So this resolve is a wonderful concept which has been brought up by the Institute of Chartered Accountants, and as it's very well said, this is the third session and we are third conference, and we are doing it into the
financial capital of India, Mumbai, and very good response, good speakers, wonderful sessions, and definitely the participants are going to benefit a lot from this conference. And this kind of conferences should happen more at the institute. Thank you so much. Thank you, ma'am. सिंगापुर में और उसके बाद दूसरा न्यू दिल्ली में और तीसरा ये भी है मुंबई में। ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। पूछो ना, सवाल पूछो। मोहसिन भाई सवाल पूछो। इवेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यहाँ चर्चाएँ हो रही है जो रिजॉल्व किया जाए, ना कि किसी कंपनी को रिजॉल्व किया जाए। रिजॉल्व का मतलब ये है कि हमें कंपनी को दोबारा एक्टिव लाना। ओके सर, तो आज यहाँ पर जो इवेंट में आपने जो स्टॉल लगाया था आपकी कंपनी का, तो हाउ इज़ द रिस्पॉन्स? The response has been good. We many senior professionals, insolvency professionals, and have visited our store. What detailed discussion हुआ about what they do and what we do. So they day in day out use many current accounts and escrow accounts across multiple banks. So we explained our whole products to them, and they've sort of really liked the solution. And we expect post this event, not many conversions happening. Okay, tell us something about your company. Yeah, so Caster is an escrow and a transaction banking platform. We help in opening and operating of multiple escrow accounts and current accounts across multiple banks via single dashboard. And we also have a different product where it's India's first cloud-native zero-code escrow platform. So in and all, we help in creating a single dashboard where all your current accounts and escrow accounts can be linked, and also we help in escrowing the source code to safeguard the interest of the companies and the vendors. So all in all, what we've tried to do is that we've tried to automate the complete fund flow movement and provide easier visibility for all the parties involved in the whole journey that is covered in the insolvency use case. So we're happy to be here. A lot of good interactions have happened. Looking forward to these partnerships converting into meaningful business. And yeah, I'm glad that we have a start. Thank you.